السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان طاہر خان۔ ویورز، آج یہاں پر فرسٹ نیشنل بلیک پینتھر چیمپئن شپ 2023 کا انعقاد کیا گیا، تو آئیے کچھ دکھاتے ہیں آپ کو اس چیمپئن شپ کی جھلکیاں بھی، اور جو اس آج مقابلے کے ونر ہوگے ان سے بات چیت بھی کریں گے، اور آخر میں جو ہے آج یہاں پر ایک انعامات کی سرمنی بھی ہوگی، تو وہ بھی آپ کو دکھائیے گا۔ تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں سارا مقابلہ۔ ویورز، آج کا جو آپ کو تمام ایونٹ دکھایا گیا اور جو آپ نے دیکھا یہاں پر جتنے مقابلہ جات تھے، ان کے پیچھے جو آرگنائزر تھے وہ دلاور حسین صاحب ہیں، یہ بلیک بیلٹ پینتھر کے فاؤنڈر بھی ہیں، اور اب ان سے پوچھیں گے کہ آج کا مقابلہ انہوں نے آرگنائز کرایا تو اس کے پیچھے ان کو کتنی محنت کرنی پڑی، کیونکہ میں ان کو دیکھ رہا تھا کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں، اور کیونکہ جب بھی کوئی ایونٹ آرگنائزر ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ ان کا آج کا کیا حال تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی دلاور بھائی، بتائیے آج کے ایونٹ کے حوالے سے۔ آج کا ایونٹ کے حوالے سے پہلے تو میں جتنے بھی ہمارے پارٹیسپیٹڈ سے ان سب کو جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنے دور سے اپنے کام کاج چھوڑ کے یہاں پر آئے، اور جو یہاں پر ونر ہوئے ان کو بھی مبارکباد، اور جو یہاں سے رنر اپ ہو کے گئے ہیں میں ان کو بھی کنگریچولیشن کرتا ہوں۔ اور سب سے جو بھاگ دوڑ کی آپ نے بات کی، تو پچھلے 4 ماہ سے ہم اس ایونٹ کے اوپر محنت کر رہے تھے۔ 4 ماہ سے ہم اس ایونٹ کو کرانے کی کوشش کر، رات دن ہم نے ایک کر کے تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے نا وہ اکٹھی کی، اور آج ہم نے اس کو فائنل طریقے سے جو ہے نا وہ کروا دیا۔ اچھا، آپ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، آپ ہی بلیک بیلٹ ہیں، تو آپ بتائیے کہ جب آپ کا ٹائم تھا اور اس ٹائم میں آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ سر، جو رنگ کے 2 منٹ ہوتے ہیں وہ بہت ٹف ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ وہ 2 منٹ نہیں ہوتے، 2 گھنٹے ہوتے ہیں، اور فائٹر سے پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ ایک بندہ باہر بیٹھا ہوا کہہ سکتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، یہ پوائنٹ چھوڑ رہا ہے وہ پوائنٹ چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اپوننٹ بھی جو ہے نا وہ جواب دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو سچویشن وہی ہوتی ہے کہ جو آپ یوں سمجھیں کہ بالکل میں سمجھ سکتا ہوں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان جس چیز میں انوالو ہوتا ہے اس کو باقی کچھ پتہ چل نہیں رہا ہوتا، وہ صرف اپنے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے سامنے والے جو اس کا مقابلہ کرنے والا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ آپ نے کتنے عرصے میں بلیک بیلٹ حاصل کیا؟ سر، میں نے جو تقریباً 4 گیموں میں بلیک بیلٹ ہوں، اور تقریباً پہلی فرسٹ جو بلیک بیلٹ ہے وہ میں نے 8 سال کے عرصے میں کی ہے، اس کے بعد 4 سال 5 سال تقریباً ہر گیم میں، اور تقریباً مجھے مارشل آرٹس کی فیلڈ کے اندر 24 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا بہت ہی خطرناک مقابلہ تھا، کیونکہ اس میں بہت سارے لگنے کے چانسز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب یہ مقابلہ اتنا یہاں تھا، جب آپ لوگ بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی ایسا ہوا کسی بچے کی ہڈی ٹوٹ گئی یا کچھ ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ جب دیکھیں کہ پریکٹس کے دوران یہ چیزیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کراؤ گے تو اس وقت تک اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو پریکٹس کے دوران ہم کوشش کرتے ہیں کہ سیفٹی یوز کریں، لیکن سیفٹی کے دوران بھی کبھی کبھار جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ چوٹ چھوٹی موٹی جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ تو پھر جب کسی بچے کو چوٹ لگتی ہے ڈیفینیٹلی بچے کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے اس کا مورال آپ کرتے ہیں؟ سر، مورال دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہے وہ ہم مارشل آرٹسٹ ہیں، ہم تو مارشل آرٹ سے یہی ہوتا ہے کہ جو چوٹ آپ کو رنگ کے اندر لگتی ہے اس کا حل بھی رنگ کے اندر ہی ہے۔ جب آپ آپ کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، پاؤں مڑ جاتا ہے یا ویسے کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ ہم لوگ اس کا جو درد ہے یا اس کو جو پین ہوتی ہے وہ ہم رنگ کے اندر ہی ختم کرتے ہیں۔ وہ ہم جو ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کہیں کہتے ہیں کہ ریسٹ کر لیں، ریسٹ بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر ہم جو ہے نا اس کو رنگ کے اندر ہی، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مارشل آرٹس ابھی چھوڑ دو، ہم بچے کو ایسے موٹیویٹ نہیں کہا، ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہاں پر کھیلو، اور انشاءاللہ آپ جو ہے نا اسی کے اندر ہی آپ کا جو ہے نا پین ختم ہو جائے گا۔ آپ کے جو ادارے ہیں، یہ جو کلب ہے یا فائٹر سینٹر جو ہیں، کہاں کہاں پر موجود ہیں؟ تقریباً اوور حال پاکستان کے اندر تقریباً ہمارے جو 28 ادارے ہیں، وہ ہر صوبے کے اندر ہمارے 3-3 4-4 انسٹیٹیوٹ ہیں۔ اگر یہاں ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے، آپ کے پاس اپنے بچے کو بھیجنا چاہے، تو وہ کہاں بھیجے آپ کے پاس؟ راولپنڈی میں ہمارا بکرا منڈی میں کلب ہے، اور ڈاکٹر سیدہ چوک میں کلب ہے، اور اسلام آباد میں ہمارے کلب ہے، لاہور میں ہمارا کلب ہے، آزاد کشمیر میں کلب ہے، KPK میں ہے کلب، اور اس کے بعد فیصل آباد اور جھنگ ملتان سب یہ کے اندر جو ہے نا ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارے جو ہے نا وہ کلب چل رہے ہیں، اور 2-2 3-3 ہر جگہ پر برانچز چل رہی ہیں ہماری۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ اس وقت میرے ساتھ سید خالد صاحب موجود ہیں، جو اس ایونٹ میں موجود تھے، اور آج یہاں پر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیے، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے ایونٹ کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سر کہ آج کے ایونٹس میں آپ تشریف لائے، اور آپ کی کوریج سے ہمارے جو ایونٹس تھے اس میں تمام اس ہماری آرگنائزنگ ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور ہم اسپیشلی جو ہے وہ اس چینل جو پنڈی سے ہیں ہم ان کا شکر گزار بھی ہیں۔ تو آج کا جو ایونٹ تھا ماشاءاللہ اس کے اندر جو ہے بین الصوبائی 4 صوبوں ود آزاد کشمیر، فاٹا، گلگت بلتستان اور ڈپارٹمنٹل تمام تر جو ہے وہ ہماری ٹیموں نے اس میں شرکت کی۔ اس میں جینٹس اور گرلز
तमाम बॉयज़ गर्ल्स की टीमों ने शिरकत की और आज के दिन में जो ये फर्स्ट नेशनल थी ब्लैक पैंथर की तरफ से और इसको यहाँ पर करवाया गया। और जैसा कि आपने देखा होगा कि ये एक वाइड वो गेम है कि जिसमें गवर्नमेंट का जो है वो उस तरह से हमारी फंडिंग नहीं होती है, लेकिन हमने अपनी जो है वो पर्सनल सोर्सेज की फंड रेजिंग करके आज के इवेंट को हमने इनेकाद किया। तो जो माशाल्लाह इसके अंदर जो है आज तकरीबन 150 प्लेयर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है और इसको जो स्पेशली जो है हमारे जो ऑर्गेनाइज़र थे जिनके तावन से हुआ है वो हमारे दिलावर साहब थे, उन्होंने इसके अंदर जो है वो काफ़ी तावन किया। उसके बाद हमारे शाह साहब एक थे, उन्होंने बड़ा तावन किया, तो हम उनके भी इस मीडिया के तवज्जुह से मशकूर हैं। और हमारी जो है आज का हमारा जो मैसेज है वो भी एक तमाम तर पेरेंट्स के लिए यही है कि एक हेल्दी एक्टिविटीज़ है और अपने बच्चों को इस पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आएँ ताकि जो है एक मुआशरा जो है वो एक जो है एहसन रास्ते पर परवान चढ़े। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मुझे आप अपने इदारे का नाम बताएं, आप कौन सा इदारा चलाते हैं? जी, मैं होम ऑफ फिटनेस का सर अदारा चला रहा हूँ, जो मतलब कि मेरा पाकिस्तान पूरे में हमारी ब्रांचेज हैं और स्पेशली मैं जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी को देख रहा हूँ। होम ऑफ फिटनेस का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, सैयद खालिद अली शाह। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये बताइए, मैं ख़ुद भी इनको देख रहा था, ये बड़े मुश्किल और कांटेदार मुकाबले थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरनाक लग रहे थे, तो बच्चों को आप कैसे ट्रेन करते हैं इसके? जी बेशक आपकी बात बजा है, क्योंकि जो मार्शल आर्ट्स जो चीज़ है ये एक तवातर का नाम है जो तवातर से सीखी जाती है और इसमें प्रॉपर एक आपने अगर देखा हो यहाँ पर एक प्रॉपर डिसिप्लिन फाइटर के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि मार्शल आर्ट मीन जो होता है वो ओनली एक डिसिप्लिन का नाम है और एक डिसिप्लिन के तहत जो है वो ये बच्चे जो है वो इसको पार्टिसिपेट भी करते हैं, एक रूल्स को फॉलो भी करते हैं और इनको जहाँ तक इनके उस्ताद कराम होते हैं उनकी एक बहुत मेहनत और लगन से ये काम होता है। और ये वायद एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको देखें तो इसका जो है वो अपना इसकी जो बुक्स या अगर इसको थ्योरी में देखें तो ये चीज़ इतनी थ्योरी में मौजूद नहीं है। ये टोटल एक जो टीचर है वो प्रैक्टिकली अपने अंदर से एक बच्चे को डेवलप करता है। तो मैं कहता हूँ इसमें उस्ताद कराम का एक बहुत बड़ा रोल है और पेरेंट्स के साथ वो उस्ताद कराम भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो बच्चों को इस लेवल तक पहुँचाते हैं। ये बताइए मुझे कि एक बच्चा जो ब्लैक बेल्ट तक पहुँचता है इसमें कितना टाइम लगता है उसको यहाँ तक पहुँचने के? जी जी, आज के दिन का आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि एक ब्लैक बेल्ट बनने के लिए कितना टाइम लगता है। तो असल बात ये होती है कि ये बच्चे के अंदर जो है ये पिकिंग की सलाहियत है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि किसी चीज़ को पिक करने की। तो वैसे नॉर्मली इसका जो है वो 3 साल का जो है वो टाइम पीरियड होता है, लेकिन जो बच्चे अच्छे टाइम पे उसको पिक कर लेते हैं तो वो 2 साल में भी ब्लैक बेल्ट के लेवल तक पहुँच जाते हैं। चलें ठीक, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। पर यहाँ पर मेरे साथ मुमताज़ साहब मौजूद हैं जो इस पूरे मुकाबले में बैठे रहे, यहाँ मुकाबला देखते रहे। तो आइए इनसे पूछते हैं आज के मुकाबले के हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुमताज़ साहब बताइए, आज का पूरा मुकाबला आपने देखा जिसमें पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान से बाहर से अफगानिस्तान से भी स्टूडेंट आए थे, तो क्या कहेंगे आज के हवाले से? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं मुबारकबाद दूंगा आई के इंतज़ाम जिन्होंने इतना अच्छा फंक्शन करवाया। और सेकेंडली सबसे ख़ास बात कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि कश्मीर, चकवाल और रावलपिंडी और बाकी अफगानिस्तान साइड से भी हमारे कई फाइटर हैं जिन्होंने फाइट की और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में स्पिरिट थी बच्चों के अंदर और एक पैगाम था कि आपस में उन्होंने के मतलब खुद को एक बेहतर परफॉर्म किया, उन्होंने आगे दिखाया कि हम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर वो पाकिस्तान के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये सारे बच्चे इंशाल्लाह कल पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलेंगे इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे नौजवान नस्ल को जो आना चाह रहे हैं, इस तरफ सीखना चाह रहे हैं, जो सीख रहे हैं, क्या क्या आपको पैगाम देना चाहिए? मैं जो हमारी यंग जनरेशन है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो मार्शल आर्ट खासकर जो ये स्पोर्ट्स है हमारी इसको इसमें आएँ। इसलिए ज़रूरी है कि आजकल आपको पता है कि जैसे कि मोबाइल वगैरह का है बच्चे, तो ये अगर वो मार्शल आर्ट की तरफ आएंगे या इससे फिजिकल फिटनेस की तरफ आएंगे तो उन्हें बेहतर एक होगा उनके लिए। एक तो फिजिकल फिटनेस है, दूसरा बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और आने वाले टाइम में उनके लिए बेहतर होगा माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे मेरे साथ मौजूद हैं आज के जो कांटेदार मुकाबले हो रहे थे, रेफरी जो उन्होंने जिनकी ही वजह से लोग जीत भी रहे थे, हार भी रहे थे और लोग कुछ बाहर भी हो रहे थे और कुछ दोबारा से इन भी हो रहे थे। आइए इनसे पूछते हैं कि इस वक्त मतलब मुकाबले के वक्त इनकी क्या कंडीशन थी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम क्या है आपका? मोहम्मद बिलाल। आप भी ब्लैक बेल्ट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप तो यहाँ तक पहुँच चुके, लेकिन आज जिन लोगों को आपने यहाँ तक पहुँचाना था उस वक्त आपकी क्या कंडीशन? देखें जी, अगर देखा जाए ना तो जितना चैलेंजिंग ये फील्ड एक एथलीट के लिए होता है, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें और ऊपर लेवल पे जाए ना तो मैं समझता हूँ कि एक इससे कई गुना ज़्यादा चैलेंजिंग ये एक ऑफिशियल के लिए होता है कि अगर वो बतौर रेफरी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है या वो ज्यूरी में बैठा हुआ है। और ये
इतना चैलेंजिंग होता है ना कि चले प्लेयर को तो फिर पता है कि ये मेरा पॉइंट है और मैंने ले लिया तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन एक रेफरी के ऊपर और ज्यूरी के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने दोनों प्लेयर्स को देखना होता है, पूरे मुकाबले को देखना होता है, तमाम रूल्स रेगुलेशन जितने भी गेम्स के सेट होते हैं उसको फॉलो करवाना होता है। तो ये लाजिम बात है, एक सबसे ज़्यादा अहम और चैलेंजिंग एक रेफरी के लिए भी होता है। और हर दफ़ा इसी तरह अब काफ़ी टाइम अगर आपको हो जाए और आप फील्ड से टच ना हो तो एक रिफ़्रेशर भी आपके लिए लाजिम बात है। आप लाइफ के हर स्टेज में सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर जितना हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ख़ास प्रोटेस्ट नहीं हुआ, मतलब जितने भी हमने डिसीजंस दिए अच्छे हुए, किसी कोच की तरफ से कोई मिसबिहेव नहीं हुआ, किसी फाउल के ऊपर इतना प्रोटेस्ट नहीं हुआ, मतलब हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी और हमने सही डिसीजंस दिए और प्लेयर्स भी मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह, कोचेस भी मुतमईन है। ये बड़ी बात होती है कि अगर इतना बड़ा इवेंट हो जाए और उसमें इस तरह के प्रोटेस्ट से हम बच जाएँ तो ये हमारे लिए बड़ी काबिल तहसीन बात होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इस वक्त मेरे साथ जाज़ेब आलम मौजूद है जिन्होंने आज का कांटेदार मुकाबला जीता और अब बेल्ट पहन के मेरे सामने खड़े। तो आइए इनसे पूछते हैं कि जब ये वहाँ पर विंग में थे तो इनकी क्या कंडीशन थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और ये बताइए, आप लाहौर से तशरीफ लाए? जी मैं लाहौर से तशरीफ़ लाया हूँ। और अब ये बताइए कि जब विंग के दौरान फाइट हो रही थी तो आपकी क्या कंडीशन थी? मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, बहुत टफ मुकाबला था। जो मेरे ओपोनेंट थे उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया मुझे और मुझे लास्ट तक मुझे यही लग रहा था कि शायद अब मैं हार जाऊँ, शायद अब मैं हार जाऊँ। और मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, जितनी एफ़र्ट मैं कर सकता था मैंने मैक्सिमम एफ़र्ट की और लास्ट टाइम तक भी मैं कोशिश करता रहा कि एटलीस्ट मेरी किक उसके फेस तक चली जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद बहुत नहीं तो शायद 1 या 2 पॉइंट से मैं जीता हूँ। और मैं अपने ओपोनेंट की भी बहुत तारीफ़ करता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा और टैलेंटेड लड़का था वो। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा आपको, मतलब ब्लैक बेल्ट तक? ब्लैक बेल्ट तक तो मैं 17 साल की उम्र में मैंने कर लिया था। अब मेरी तकरीबन 36 ईयर्स एज हो गई है। मैं कोच भी हूँ, स्कूलों में करवाता भी हूँ। यहाँ पे बस दिलावर भाई की मोहब्बत में आ गया था तो, और आज मैंने डिसीजन लिया कि इंशाल्लाह मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। अब मैं नो मोर बी प्लेयर, मैं अब प्लेयर एज अ प्लेयर नहीं खेलूँगा। हाँ, एज अ कोच मैं ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करूँगा और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरे स्टूडेंट्स आएंगे आगे, मुझे अब आप लोग एज अ प्लेयर नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। फिर जी कह रहे हैं मेरी 37 ईयर्स एज है, हालांकि मुझसे ये बड़े लेकिन लगते नहीं, इसका क्या राज? बस वो एक्सरसाइज करते हैं और मेरे टीचर्स की बहुत मेहनत है मुझ पर, उन्होंने बहुत मेहनत की मुझ पर, बहुत एफ़र्ट की उनकी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इसमें मैं अपने टीचर सैयद जुल्फ़िकार साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने वाक़ईतन मुझ पर बहुत मेहनत की है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फिर इस वक्त मेरे साथ नदीम अहमद साहब मौजूद हैं जो कोच हैं इस जो आपने जो आज सारा खेल देखा, ये बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो आइए इनसे आज के वाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी नदीम साहब, आज आप पूरे मुकाबले में मौजूद थे, कैसा रहा आज का मुकाबला और कैसा लगा? A1 मुकाबले हुए हैं सर। मेरे ख़्याल में ऐसी मस्बत एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो कि बच्चों के लिए बेहतरीन होती हैं। बच्चे अगर स्कूल्स और इसके लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसे मुकाबलों का इनेकाद किया जाती है, स्पोर्ट्स के लिए भी और बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अच्छा मुझे बताइए, ये जो ब्लैक पैंथर बेल्ट है या ये जो इसे कराटे कहा जाता है, इसको क्या हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है? कई जगहों पे तो हमारे पास फाइनेंसर आ जाते हैं प्राइवेट जगहों पे, लेकिन ज़्यादातर सरपरस्ती कम ही मिलती है हमें। फाइनेंसर का इशू होता है या फाइनेंस का इशू हमें रहता है हमेशा से, चाहे हमारे प्लेयर जो है बाहर मुल्क जाना चाहें या किसी भी मुल्क की सतह पे जो मुकाबले होते हैं उसमें इश्यूज़ होते हैं हमें। देखिए जैसे हर जो भी इदारा होता है उसकी कोई एसोसिएशन होती है, आप लोगों की भी कोई एसोसिएशन होगी, तो कभी आप लोगों ने मिलकर बैठ के इस बात को नहीं किया कि हमें जाना चाहिए, हुकूमत तक पहुंचना चाहिए, अपने जो आपका ये फ़न है इसको आगे तक लेके जाना चाहिए? सर कोशिश तो जारी रहती है, हर सतह पे अपनी आवाज़ उठाते हैं और जाके अपना वर्क भी कंप्लीट करते हैं, सारी वो करते हैं। लेकिन ये है कि हुकूमत वक्त इस तरफ तवज्जो दे, ये हम कह सकते हैं, तो फिर हमारे लिए फ़ायदा होगा इस चीज़ में। आप जो इदारा चला रहे हैं वो कहाँ पर? जी मैं करक में अपना इदारा चला रहा हूँ। अच्छा, आप करक से आए? जी जी मैं करक से आया हुआ हूँ। आपके स्टूडेंट भी आए हैं? जी मेरे साथ स्टूडेंट हैं मेरे, उसामा अमल जिन्होंने बेल्ट टाइटल फाइट जीती है, तो वो मौजूद है मेरे साथ इस वक्त। उससे अगर आप बात करना चाहें तो। चलें ठीक है, बहुत थैंक यू। फिर इस वक्त मेरे साथ उसामा अमल मौजूद हैं जो करक से आए थे यहाँ पर कांटेदार मुकाबला करने, और करक से आके कांटेदार मुकाबला करके बेल्ट अपने नाम कर चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक सर। और आज का मुकाबला कैसा लगा? कैसा खेला? बहुत ही ज़बरदस्त खेला है सर। बस आज तो मेरा खुशी का दिन है, सबसे बड़ी खुशी का दिन है। कितना टाइम लगा आपको इस बेल्ट तक पहुंचने में? बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, 3-4 साल लगा है। 4 साल का? जी 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 सर। तो आज जब आपका मुकाबला हो रहा था, तो जब आप वहाँ से आ रहे थे तो आपने क्या सोचा था, क्या सोच के?
मुबारक से। ये सोचा था कि मैं जीतूंगा इंशाल्लाह और माँ बाप की दुआओं के साथ आया था मैं और साथ ही गांव वालों की दुआओं के साथ आया था। जो आपके अपोजिट थे आपके साथ मुकाबला करने वाले वो कैसे थे? वो ज़बरदस्त है। उन्होंने आपको टफ टाइम दिया? जी जी, चलें ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ अमानुल्लाह मौजूद हैं जिन्होंने आज बड़े कांटेदार मुकाबले के बाद ये बेल्ट हासिल की और मैं देख रहा था बड़ा ज़बरदस्त और टफ इन्होंने मुकाबला किया। तो इनसे पूछते हैं कि मुकाबले के वक्त इनकी क्या कंडीशन थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आज मुझे ये सबकी दुआओं की वजह से और मेरे कोचेज़ की ट्रेनिंग की वजह से मिली है। और जैसा कि आज मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान। देखें, अफ़गानिस्तान भी हमारा भाई ममालिक है और हम भी पाकिस्तान के हैं, तो एक तो इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमने ज़ाहिर किए हैं कि अच्छे रहे हैं। और इसके अलावा जो चैम्पियनशिप थी वो बरादराना तरीके से थी, लेकिन काफ़ी मेहनत लगी है रिंग के दौरान फाइट में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बेल्ट हासिल कर लिया और पाकिस्तान जीत गया। मेरी तरफ से आप सबको मुबारक हो। वाकई में ये दाद के मुस्तहिक है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान जो मुकाबला था उसको विन किया है। मतलब पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और अफगानिस्तान जैसे उन्होंने कहा हमारा ब्रदर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, खेल जीत जो हार होती है वही तो इस खेल का हिस्सा होता है। लेकिन फिर भी इन्होंने इतने कांटेदार मुकाबले के बाद और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो इसको एक दो फिर मुबारकबाद कहते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। आप सबको देखने वालों को आप सभी को भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।